Namaskar. I again welcome you all in my next session of political theory. And the topic which I'll be discussing in today's, would say, lecture, that is the characteristics of John Austin's theory. As you know that we are discussing the John Austin's theory of sovereignty, and in our previous class we had discussed that what is it all about. We had discussed the John Austin's theory of sovereignty. Especially in this lecture, in this session, I'll be discussing that the major characteristics of John Austin's theory. As you know, friend, when we talk about the John Austin's theory, this is very much popular theory which has been given by the John Austin. And one main thing I would like to mention over here that if you know that uh, what did say John Austin in his theory, and what was the concept according to him as far as sovereignty is concerned, as far as the state sovereignty is concerned. So you can easily answer the question. You can easily describe the characteristics or nature of this theory. Well, I'll go one by one. All the headings, and I'll go through the contents, and I will explain each and everything in front of you in a very simple word. But as I do always, that whenever I bring new concept or I start teaching new topic, first first of all, what I do that I explain. I try to explain the whole thing in a very simple words. So मैं एक brief idea देने की कोशिश करता हूँ. I always try to give you a brief idea what is it all about. जैसे हम characteristics की बात करें, ठीक है, we should mention the headings because you people score the good marks if you mention good headings, you underline it, you bold it, or you go through step by step, you mention your answer, you answer your question in points. So that's the right or correct way of answering the question. But let's discuss what is it all about, क्या सी special characteristics हैं, क्या विशेषताएं हैं as far as John Austin's theory is concerned. So I again welcome you all, and once again I would like to say that please pay attention to my words. The contents which are being explained by me, or the concept, or also I would request you to please make a note on that if you think that there is something important to be noticed. ओके. सो आप सभी को पता है, जब हमने जॉन ऑस्टिन की थ्योरी पढ़ी थी, कि जॉन ऑस्टिन की जो थ्योरी में उन्होंने जो दिया सिद्धांत संप्रभुता के अंतर्गत, या राज्य की संप्रभुता के संबंध में जो उसने अपनी थ्योरी दी, उन्होंने बड़े स्पष्ट ढंग से एक चीज समझाने की कोशिश करी कि जो संप्रभुता है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है. ओके. तो सबसे बड़ी बात, अगर एक नटशल में बोलूं कि जॉन ऑस्टिन क्या समझते हैं या क्या बोलते हैं, और या उनकी थ्योरी क्या कहती है, कि किसी भी राज्य की संप्रभुता है, किसी भी स्टेट की जो सोवरेनिटी है, वो सर्वोपर है, अबव ऑल है, उस पर किसी का अंकुश नहीं है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है. पहली बात तो ये. दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर जॉन ऑस्टिन की थ्योरी की अगर हम बात करें और उससे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो पूर्व वो जो है उनके अकॉर्डिंग टू जो स्टेट है वो एक लॉ सिस्टम है, एक कानून का सिस्टम है, कानून की प्रणाली है, कानूनी प्रणाली कह सकते हो. स्टेट इज अ, कह लीजिए, लॉ सिस्टम अकॉर्डिंग टू हिम, या उसकी थ्योरी के अनुसार मैं बात करूं. और उस लॉ को संचालित करने वाला, उस लॉ को कह लीजिएगा गतिशीलता प्रदान करने वाला, उस लॉ को मनवाने वाला, या उस लॉ को लागू करवाने वाला कौन है, जो उन्होंने अपनी थ्योरी के अंतर्गत जो टर्म यूज करा है, ऑथोरिटी. ठीक है, एक पावरफुल शासक, रूलर, सर्वे सर्वा जिसे कह सकते हैं, एज ए होल, जो टॉप मोस्ट जिसे पोजीशन प्राप्त है सबसे ऊपर, यानी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा ऑथोरिटी, ऐसा व्यक्ति, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, कि उसमें ऐसी विशेषता है, ऐसी कौशल है, ऐसी लीडरशिप स्किल्स हैं, क्वालिटी है, या उसकी ऐसी भाषा शैली है कि वो उस राज्य या उस समाज में, या एक बहुत बड़े ग्रुप की मैं बात करूं के अंतर्गत, वो किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता, बल्कि लोग उसकी आज्ञा को मानते हैं या पालन करते हैं. तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने ऑथोरिटी की संज्ञा दी, या ग्रुप ऑफ पीपल को उन्होंने बोला कि इसमें इट माइट कंसिस्ट यू नो ऑफ ग्रुप ऑफ द पीपल. तो बोलते हैं कि ऑथोरिटी जो है वो समाज में आवश्यक है, ताकि जो स्टेट की संप्रभुता है, या आप इसको कह लीजिएगा सोवरेनिटी, वो बनी रहे. दूसरा, अगर हम इसे करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कि जो ऑस्टिन की थ्योरी वो लॉ पे बेस्ड है, यानी कि एक प्रॉपर कानून, और कानून का पालन ऐसे नहीं करना स्वेच्छा से, मतलब हर किसी के लिए कंपलसरी है, ये बाध्यता है कि वो कानून का पालन करेंगे, बिना किसी स्वयं की कह लीजिएगा इच्छाओं की, या उसकी शर्तों के, या सहमति के, उन्हें उस जो स्टेट अथॉरिटी है उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा.
तो ये भी एक विशेषता है। ओके, नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग और पॉइंट्स। ऑल और सिंपल पॉइंट देखिए, जब मैंने सोवरेनिटी को डिस्क्राइब किया था, जो भी मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करे थे, काफी सिमिलरिटीज हैं ऑस्टिन के करेक्टरिस्टिक्स में, या मैं कह लूं कि ऑस्टिन की जो थ्योरी है उसके संबंध में, विशेषताओं के संबंध में, और सोवरेनिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके संबंध में। दूसरा, ऑस्टिन यहाँ एक बात और बोलते हैं कि वो इंडिविजिबल है, इंडिविजिबिलिटी है, उसको कोई एब्सोल्यूट है, ठीक है, डिवाइड नहीं कर सकते उस पावर को। आई विल एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स इन डिटेल, बस बट थोड़ा सा मैं अभी आइडिया दे रहा हूँ। अनलिमिटेड ऑथोरिटी है, अनलिमिटेड है, सोवरेन कह लीजिए पदस, दी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लीगल ऑथोरिटी, यूनिवर्सल है, बहुत बड़े एरिया, बहुत बड़े भूभाग पर वो लागू होती है। ऐसा नहीं किसी लिमिटेड पीपल पर या लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल पर, किसी व्यक्ति पर सोवरेनिटी लागू हो रही है, सोवरेनिटी सभी के लिए। सोर्स ऑफ लॉ, उसकी जो थ्योरी थ्योरी है, उसका जो सोर्स है वो लॉ है। लॉ लॉस डिराइव देयर वैलिडिटी फ्रॉम द फैक्ट दैट दे आर कमांड्स इशूड बाय द सोवरेन, सोवरेन सॉरी। तो सबसे बड़ी बात है कि बात जान लीजिएगा कि ऑस्टिन क्या कहते हैं कि किसी भी स्टेट की जो संप्रदाय, जो सोवरेनिटी है, उसकी जो पहचान है लॉ। क्यों? क्योंकि अगर उस स्टेट के अंतर्गत लोग प्रॉपर वे में कानून का पालन कर रहे हैं, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो सोवरेनिटी बनी रहती है। और जहां उसमें अराजकता फैलती है, लोग उसमें अपनी इच्छाओं को समावेश कर देते हैं या अपने विचारों को रख देते हैं, तो फिर वो उनका कहना है कि फिर उस स्टेट की सॉवरेनिटी यू नो नहीं कहलाती, या फिर वो राज्य की अपनी संप्रभुता समाप्त हो जाती है, समाप्त होने के कगार पे होती है। तो जो कानून है, जो लॉ है, उसका सभी समान रूप से पालन करते हैं बिना स्वयं की इच्छा के, ठीक है। तो these were some, I would say the basic, I would say the characteristics of the John Austin's theory. Now, what I'll do, I'll go one by one and I will explain each heading in front of you. So, because question consists of 10 marks or long questions, कह लीजिएगा long question is asked in examinations. Objective types of questions are also formed, but वो तभी है when you'll go through the concept and the concept will become clear for you people. Now let's talk about the first characteristic, या इसकी पहली जो विशेषता है वो सुप्रीम पावर, ठीक है। एज आई सेड, जो स्टेट की जो सोवरेनिटी है, अकॉर्डिंग टू हिम, या उसकी थ्योरी की मैं बात करूं, वो उसकी सुप्रीम पावर है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है, अबव ऑल। और एक बात जान लीजिएगा, किसी भी राज्य को राज्य कहलाने के लिए, किसी भी स्टेट को स्टेट कहलाने के लिए, जैसे कि मैं कल बता भी रहा था, वो अपनी थ्योरी में भी इसी बात को कहते हैं कि उसके चार प्रमुख एलिमेंट्स हैं। एक तो उसका भूभाग है, जोग्राफिकल एरिया है, पॉपुलेशन है, ठीक है, और तीसरा इसका सोवरेनिटी है, अगर मैं बात करें। और अगर मैं बात करूं जो इसका क्या नाम है, चौथा है, यानी कि उस राज्य की जनता है। तो ये चार एलिमेंट है जो किसी भी स्टेट को कहलवाने के लिए जरूरी जरूरी है, आवश्यक है। बट सबसे जो मेन है वो है उसकी सोवरेनिटी, क्योंकि बिना सोवरेनिटी के, बिना संप्रभुता के स्टेट स्टेट नहीं कहला सकता, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, राज्य फॉर्म होगा नहीं, राज्य कहलाएगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि बिना सोवरेनिटी के राज्य की खुद की पहचान भी नहीं, क्योंकि ये उसकी असीम पावर, असीम सत्ता है, जैसे कि टर्म्स भी कहते हैं कि सुपर पावर, पैरामाउंट। तो ऑस्टिन की थ्योरी के अनुसार जो राज्य है, उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी सोवरेनिटी के कारण है, उसकी संप्रभुता के कारण है। बिना संप्रभुता के राज्य का अस्तित्व भी नहीं है, और ये उसकी अपनी टेरिटरी में बनी रहती है, ठीक है। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन इज इनडिविजिबिलिटी, ठीक है, इनडिविजिबल। पहले ही मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कभी लोगों की धारणा रहती है, कई बार देखा है मैंने स्टूडेंट्स के, जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ, वो पूछते हैं कि सर, जैसे कि हम बात करें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या फिर हम बात करें कि भाई जो लोकल स्तर पर सरकारें हैं, तो क्या सोवरेनिटी संप्रभुता को डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है बस में? तो नहीं। संप्रभुता जो होती है, ध्यान रखना, वो एक ही राज्य की होती है, उसकी खुद की पहचान है, वो सिंगल होती है, ठीक है। उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते कि तुम संप्रभुता का इतना प्रतिशत ले लो, मैं संप्रभुता का इतना प्रतिशत ले लो। नो, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार और लोकल स्तर पे बॉडीज है, उसके अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। प्रत्येक राज्य की, प्रत्येक स्टेट की अपनी एक पहचान है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सोवरेनिटी, उसकी अपनी संप्रभुता, उसकी पहचान है, और एब्सोल्यूट है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पावर है। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड और शेयर्ड अमंग डिफरेंट एंटिटीज और इंस्टीट्यूशन विद इन द स्टेट। उसको विद इन द स्टेट के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जब स्टेट की बात करते हैं। जैसे हमारी जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और अपना आपका एग्जीक्यूटिव है। तो इसमें या फिर और भी टॉप बॉडीज हैं, और भी टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, उस देश की जनता है, कुछ पावरफुल एलीट पीपल है,
उसमें भी हम ये नहीं कह सकते कि सोवरेनिटी कैन बी डिवाइडेड और शेयर्ड among all. No, it's not possible at all. Okay. थर्ड वन इज अनलिमिटेड ऑथोरिटी। सबसे बड़ी बात है कि उसके पास अपार ऑथोरिटी है, अनलिमिटेड है, कोई लिमिटेड नहीं है। ऑस्टिन की थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी पहचान आती है, उसकी विशेषता आती है कि अनलिमिटेड ऑथोरिटी, मतलब वो लिमिटलेस है, उसके पास अपार पावर है, पावरफुल है वो। द सोवरेन possess unlimited legal authority. There are no legal limits on what the sovereign can command, meaning the sovereign can make or unmake any law. ठीक है, यहाँ पर ऑस्टिन की अगर मैं थ्योरी की बात करूं, उसकी विशेषता की बात करूं, तो उस समाज में, उस राज्य में जो ऑथोरिटी है, जो पावरफुल पर्सन है, वो अपने अकॉर्डिंग टू लॉ बना सकता है, लॉ चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके पास यहाँ पावर की बात करूं, जिस पावर का इस्तेमाल पूरी राज्य की जनता में कर रहा है, वो अनलिमिटेड है। ठीक है, और अनलिमिटेड है, और वो इट कैन नॉट बी शेयर्ड ऑल्सो, जैसे कि मैंने बोला। तो एंड देयर आर नो लीगल लिमिट्स ऑन व्हाट द सोवरेन कैन कमांड, कोई इसकी लिमिट नहीं है। पावर, जैसे कहते हैं ना, अथाह सागर, महासागर, तो ये क्या है, पावर का महासागर है। ओके। सोर्स ऑफ लॉ, तो जैसा कि मैंने कहा था कि जब हम ऑस्टिन की थ्योरी की बात करते हैं, उसकी जो पहचान है, मेजर है, वो उसकी लॉ है। यू नो, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, और कई बार आपने, जब मैं डिस्कस किया मैंने इस थ्योरी को, तो जो स्टेट क्या है, वो लॉ सिस्टम है, या लॉ का सिस्टम है, कानून की प्रणाली है। तो कानून की प्रणाली कितनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी। और यहाँ जब ऑस्टिन बात करते हैं कानून की, तो उस कानून में स्वयं की इच्छा या उस ऑथोरिटी, एक सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल की इच्छाओं की बात तो वो करते हैं, बट उस राज्य में निवास करने वाली जितनी जनता है, और भी जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो उनकी खुद की इच्छाएं हैं, जो नैतिक और मूल्य हैं, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे पक्ष होते हैं, उसको बिल्कुल इग्नोर किया गया है ऑस्टिन की थ्योरी में। हालांकि ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। थोड़ा सा मैंने इस चीज को यहाँ पर आपके साथ इसलिए शेयर किया, आपको पता चल जाए कि उन्होंने कानून को कितना महत्व दिया है। ठीक है, तो द सोर्स ऑफ लॉ की अगर मैं बात करूं, जो स्टेट है, जो सोवरेन स्टेट है, जो स्टेट की सोवरेनिटी है, ठीक है, उसकी पहचान इसलिए है कि उसमें लॉ या कानून एग्जिस्ट करता है। ओके। नाउ, हैबिट ऑफ ओबीडियंस, ये चीज हमेशा थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज व्हेन यू टॉक अबाउट द हैबिट ऑफ ओबीडियंस। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर लोकतंत्र से मैं हट रहा हूँ, क्योंकि ऑस्टिन की थ्योरी की प्रेजेंट सिनारियो में अगर मैं बात करूं, तो थोड़ा सा वो लोकतांत्रिक ना रहकर उसमें थोड़ी सी एनार्की झलकती है। उनके अनुसार, जैसे कि अगर हम बात करें कि हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, या अगर मैं बात करूं एज ए होल, या हम केंद्र सरकार के रूल्स रेगुलेशंस पैरामीटर्स, या बात करें कानूनों की, तो हमारे हमारे ऊपर कहीं बाध्यता नहीं है। कोई डंडा लेके नहीं आया कि हाँ, यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, तो हम खुद से करते हैं। हमारी नैतिकता है कि क्या गलत है, क्या सही है, यू नो वट वी आर सपोज टू डू, वट वी आर नॉट सपोज टू डू। हमें पता होता है अच्छी तरीके से कि हमें किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है। जो समाज द्वारा मापदंड है, पैरामीटर्स विच हैव बीन डिसाइडेड बाय द सोसाइटी, हमें उनको फॉलो करना है। हमें कोई रूल ब्रेक नहीं करना है। वो हम, ये नहीं कि हमें कोई भय से कर रहे हैं, कोई डर से कर रहे हैं। लेकिन ऑस्टिन की जो सिद्धांत है, या सोवरेनिटी के बारे में जो थ्योरी उसने दी है, उन्होंने बोला कि आदत डाल लें। वहां पर जो निवास करने वाली जनता है, जितने भी लोग हैं उस राज्य में, उस ऑथोरिटी के अलावा, उनके, वो तो एज ए होल है, उसके पास सुपर पावर है। उसके अलावा जितने भी लोग हैं, वो ये आदत डाल लें कि उनको आज्ञा का पालन करना है, विदाउट एनी एक्सक्यूजेस, मतलब उनकी स्वयं की इच्छा नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब लॉ का निर्माण होता है, तो उसमें और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को भी इंक्लूड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑस्टिन की थ्योरी के अकॉर्डिंग टू, जो ऑथोरिटी है, जो सर्वे सर्वा, जो होल पावर लिए बैठा है, उसके पास ये पावर है बस। और वो ये पावर है कि वो लोगों से अपनी आज्ञा का पालन कर रहा है, और लोग ये आदत डालें, हैबिट हो जाए, विरोध ना करें कानूनों का, ये आज्ञा का पालन करने में, कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, ये हमें हमारे हित में नहीं है, ऐसा नहीं है। परंतु प्रेजेंट सिनारियो में, लोकतंत्र में हम इसकी बात करते हैं, जब कानून का पालन किया जाता है, तो हम बाध्य होकर नहीं करते, हम स्वेच्छा से करते हैं कि हाँ, ये सही है। और राज्य भी हमारे से ऐसा कोई कानून का पालन नहीं करवाता जिसको हमें अनुपालन करने में बहुत ज्यादा, कह लीजिएगा, भय का सामना करना पड़े, या फिर हमारे पीछे कोई बाध्यता हो। ठीक है, नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग, विच इज द सैंक्शंस, सैंक्शन बैक्ड कमांड्स। ओके, now I will go through these lines and I will explain the things in simple but for people. Laws are understood as commands that are backed by the threats of sanctions or penalties for non-compliance. The effectiveness of law is ensured through the sovereign's power to enforce obedience. ये वाली हेडिंग ऊपर वाली हेडिंग से कुछ मिलती जुलती है।
जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो कमांड है वो या जो भी रूल्स है, जो भी इंस्ट्रक्शन जो पास होते हैं, वो उसका पालन करना ही करना है। और किसी राज्य की जो सोवरेनिटी की इफेक्टिवनेस है, किसी भी राज्य की संप्रभुता की जो प्रभाव है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस राज्य के अंतर्गत कानून का पालन लोग किस हद तक कर रहे हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना अपनी सहमति दर्शाए हुए। तो लॉज आर अंडरस्टूड एज कमांड्स दैट आर बैक्ड बाय द थ्रेट ऑफ सैंक्शंस और पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। प्रोविजन भी है, जो लोग कहते हैं ना, दंड का प्रावधान है, जो ऑस्टिन की थ्योरी सोवरेनिटी के बारे में बात करें, जो लोग उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उल्लंघन करते हैं, या फिर कानून का पालन नहीं करते हैं, तो उसके लिए फिर दंड या पेनल्टीज का प्रोविजन है। तो यहाँ पर वही बात आ गई, यहाँ पर हम लोग लोकतंत्र के पहलू से देखें तो इनकी थ्योरी फिट नहीं बैठती, क्योंकि प्रेजेंट सिनारियो में वी आर द सिटीजन ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉरलिटी। कोई मॉरलिटी, कोई आदर्श, कोई नैतिकता का कोई भाव नहीं है, अलग है। ऑस्टिन्स थ्योरी डिस्टिंग्विशेस लॉ फ्रॉम morality. Legal positivism, which his theory supports, argues that the existence and content of law are determined by social facts and not by its moral merits. जान लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात अभी समझाई, कि जब हम अपने नेशन की बात करते हैं, जब अपने राज्य की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत अगर हम किसी आज्ञा का पालन करते हैं, या फिर उस राज्य के अंदर कानून बनाया जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि हम उस राज्य में निवास करने वाली जो जनता है, उसकी भी सहमति को देखें। ठीक है, उसका भी थोड़ा सा विचारों को आमंत्रित करें, इंक्लूड करें। पॉलिसीज जो बना रहे हैं, देखें उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी, उनके वेलफेयर को सुनिश्चित करें। बहुत सारी चीजें होती हैं, बट यहाँ पर उनकी लॉ लॉ को, या जो ऑस्टिन की थ्योरी है, आई वुड से दैट सोवरेनिटी की, उसने मॉरलिटी को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। यानी कि उनके लॉ में और प्लस लॉ के पालन में कोई भी नैतिकता की बात नहीं है। यानी कि जैसे मैंने अभी बताया ना, कि प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिचुएशन की मैं बात करूं, तो हम लोग जो आज्ञा का पालन करते हैं अपने स्टेट की, वो उसमें एक एक नैतिकता के आधार पे है, कि हाँ भाई, हमें करना चाहिए, हम देश के निवासी हैं, और कानून का पालन करना चाहिए, व्यवस्था बनी रहती है, अराजकता नहीं फैलती है, और हमारे हित के लिए अच्छा है, गवर्नमेंट हमारे के लिए। तो बट ऐसी कोई चीज हमें ऑस्टिन की थ्योरी में देखने को नहीं मिलती। Okay, now I will move to the last and eight heading and few headings. If I can explain this lecture, then I will think over it. But first of all, let me explain this particular heading, which is eighth of this topic, centralized of power, or you can say that centralization of power. So the theory emphasizes the centralization of power in a single sovereign authority, as opposed to a distributed or federal system of governance. ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड ऑफ पावर की अगर हम बात करें, हालांकि आपको पता ही है कि अगर पॉलिटिक्स साइंस के अंतर्गत जब हम एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं, तो यूनो को जो शक्तियों का विभाजन किया गया है राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, और शक्तियां हमारी का आवंटन है। बट आपको मैं एक बात बताऊं, थोड़ा सा ये है कि हाँ भाई, केंद्र का ज्यादा प्रभुत्व है, या ज्यादा पावर मिली है, बट राज्य को अप टू सम एक्सटेंट स्वतंत्रता प्राप्त है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ क्षेत्रों में कानून बनाने का, इम्प्लीमेंटेशन करने का अपना उनका एरिया है, या कह लीजिएगा शासन प्रणाली के अंतर्गत वो प्रावधान है, प्रोविजंस है। बट अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ स्टेट सोवरेनिटी, कहीं भी ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। क्योंकि देखिए, किसी भी स्टेट की बहुत सारे ऑर्गन्स भी होते हैं, भाग भी होते हैं, बहुत सारी बॉडीज होती है, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, वहां पे लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पर पावर को सेंट्रलाइज्ड किया गया है। द थ्योरी emphasizes द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन ए सिंगल सोवरेन ऑथोरिटी। यानी कि जिस ऑथोरिटी की मैं बात कर रहा था, ऑस्टिन कहते हैं कि जो उनके द्वारा राज्य की जो बात हुई है, उसमें सारी पावर, सारी सत्ता की बागडोर एक व्यक्ति के हाथ में होगी, जिसको उन्होंने ऑथोरिटी बोला। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो पावर है, वो भी ऑथोरिटी के पास ही होगी, उस पर्सन के पास होगी, या कुछ लोग लिमिटेड पीपल के पास होगी, उसको डिसेंट्रलाइज नहीं किया जाएगा। दिस वाज आल्सो अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। हालांकि नो डाउट व्हेन आई विल डिस्कस द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरी, तो उसमें ये पॉइंट्स भी, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऑटोमेटिकली क्रिटिसिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। उससे मैं आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके होंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा वो रहेगा, आई वुड से दैट डिस्कशन रहेगा, इन विच वी विल डिस्कस द सॉरी क्रिटिसिज्म ऑफ द ऑस्टिन थ्योरी। तो मैं फिर वही चीज कर रहा हूँ कि प्लीज कीप दिस हेडिंग्स इन योर माइंड, क्योंकि मैनी ऑफ हेडिंग्स माइट बी कन्वर्टेड, या विल कन्वर्टेड, आई वुड से विल कन्वर्टेड इन
criticism of Austin's theory. Okay, so these characteristics collectively define Austin's perspective on the nature and function of sovereign power within a state, laying the groundwork for the development of legal positivism and influencing subsequent legal and political theory. तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पर बात कही है वही है, इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको कंक्लूड करने की कोशिश करी है। वो पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं अभी आपके साथ ऊपर, उसी को उन्होंने यहाँ पर सार दिया कि किस तरह से स्टेट उसकी सोवरेनिटी, उसकी पावर, लॉ, मोरालिटी का अभाव, और so many things are there which can be characterized on the basis of these contents. And in exams, if you are asked ki what are the characteristics or nature or features of the Austin's theory, I'm sure you will be in position to describe the, I would say, characteristics in your own words easily. There will not be any difficulties in that. So this way, again, I would say that thank you very much for being the valuable part of this session, and this way we come to the end of the lecture. And thank you very much for being the valuable part of this session. And I hope that entire session would have been enjoyed by you people. And I'll see you again in my next lecture of political theory, and I'll be discussing the criticism of the Austrian theory. We'll see. We will have a look on the theory, that how the theory is criticized by many philosophers or politicians, activists, and philosophers. Until then, I would say that thank you very much once again. Thank you. Thanks a lot. See you again. Have a nice day. Thank you.